वैसे मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं सुनील गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ी स्पीडी पहुँचा हूँ मैं जनरल हॉस्पिटल लाहौर में और अभी गेट पे हूँ। और अभी मुझे पता चला एक फैमिली मेरे साथ सुबह से राब्ते में थी। सुबह से ये फैमिली मेरे साथ राब्ते में थी। पता ये चलता है कि एक मसीही नौजवान जिसके 3 बच्चे हैं और भट्टा मजदूर है, और भट्टा के जो मालिकान हैं उन्होंने मामूली बच्चों की लड़ाई पे इसको इस कदर इस शिद्दत के साथ मारा है कि उसके सर के अंदर रॉड मारे गए हैं। उसके सर के अंदर रॉड मारे गए हैं। उसकी कमर को तोड़ दिया गया है बकौल लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं अभी, और बहुत बुरे हालात हैं। मैं ये सुन रहा था कि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक उस बंदे को अब्बास अनवर मसीह जो है अभी तक उसको होश नहीं आया है। और अभी मैं जस्ट पहुँचा ही हूँ जनरल हॉस्पिटल लाहौर में। मज़ीद इसके बारे में हम इनके लवाहिकीन से पूछते हैं कि ये इनके साथ क्या मुश्किल पेश आई है, क्या वाक़या है, ये अपनी ज़बानी खुद बताएंगे। सर मैं ये बात करनी है कि मेरे ननान भी गए ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਿਆਦ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਲਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਿਆਦ। ਤੇ ਭੱਠੇ ਰੇਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਗਰੋਂ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਾਰਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾਣ ਡਏ ਨੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? 11 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅब्बास अनवर मसीह ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼, ਨਾ ਗੁਨਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਿਆਦ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਚੌਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਦੀ ਕਰਾਓ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਦੀ ਬੱਚੇ? ਅब्बास ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਅब्बास 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਈ ਬੀਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਘਰਾਂ ਚ। ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਅੰਜਦੀ ਕਿ ਲੱਤ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੰਜ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਚਾਈ मिले। अच्छा, ये नाल बच्चा है भाई, आप किसके ये आपके क्या लगते हैं अब्बास साहब? फूफा जी हैं? फूफा जी मेरे। फूफा जी। ये जो बकुआ हुआ था उस वक्त मौके पे कौन कौन मौजूद था वहाँ पे? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਮੂ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ? ਮਾਮੂ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਯੂਸਫ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ। 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। 11 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ।
ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਵੀ ਨੇ ਕਿ खुदा इन्होंने जल्दी सेहतयाब करन। लेकिन मैं हुणे जिस तरह मिल के आया वहाँ वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई उन्होंने होश नहीं है। तो ਤੁਸੀਂ हुकूमत वक्त ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੂਸਲਾ ਕਮਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। केड़ी गल तो मारिया गया ठीक हो गया। नाज़रीन मेरे साथ मोहतरमा शबनम सियाल साहबा भी मौजूद हैं, अभी पहुंची है मेरे साथ ही। और जैसे इस वाक़े का पता चलता है तो ये कहती हैं कि मैं भी साथ जाऊंगी। मैडम क्या आपके सामने सूरत हाल है, आप क्या कहना चाहेंगी? एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा सुनील ऐसा हुआ है और अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक वीडियो ऐसे डाली थी, भट्टा मसरूद का ही प्रॉब्लम था। तो नहायत संगीन ये प्रॉब्लम है और इस टाइम मेरे ख्याल में हम लोगों को ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से, इजाज़ आलम साहब से जो इस टाइम अक़लियती मिनिस्टर हैं, तो हम ये उनसे रिक्वेस्ट कर मतलब पर्सनली तौर पे ये बात करना चाह रही हूँ कि जिस तरह ये लोग मजबूर हैं, इनकी वो जो अब्बास साहब हैं जो इस टाइम बिल्कुल बेहोशी की हालत में है और उनकी रीढ़ की हड्डी का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सर का भी, सर के अंदर रॉड मारे गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनके कमाने वाला तो वही था और अगर उसको कुछ हो जाता है तो खुदा न खास्ता इनके ख़ानदान का कौन है। जैसे कि बताने में आया, इनकी भाभी ने बताया है कि उनकी मिसेस भी जो है वो अपाहिज है। तो मेरे ख्याल में सुनील साहब चाहिए तो ये है कि इनको पूरी से पूरी हुकूमत से फेवर मिले और इनका जहाँ तक हो सके हमारे गुजरा जो है इनका साथ दें। और आपके लिए यही हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और इनकी हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया। ये है नाजरीन अब्बास मसीह की, आप क्या लगती हैं? भाभी आप अब्बास मसीह की भाभी हैं। सिर्फ आखिरी 1 मिनट लेना चाहूँगा, तमाम देखने वाले दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ। लम्हा फ़िक्रिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ को किसी न किसी जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। और अब्बास मसीह जिसको मामूली तनाज़े बच्चों की जो आपस की लड़ाई है उसमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 11 से 12 लोग बताया जा रहा है कि उन्होंने इसके सर पे रॉड भी मारे, उसकी रीढ़ की हड्डी भी जो है उसका भी कोई पता नहीं है कि वो जुड़ सकेगी कि नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनके घर को विज़िट किया जाए और इनके बाकी के जो मामलात हैं मतलब थाना कड़ा लगता है, थाना लगता है सिटी थाना फरुखाबाद, सिटी थाना फरुखाबाद। हाँ जी सिटी थाना फरुखाबाद जी। SHO ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? SHO भी नहीं गल सुनता पिया, कोई नहीं गल सुनता? नहीं। ये तो बड़े ख़तरनाक हालात हैं। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है अब्बास अनवर मसीह को, वो बड़े बासर वहाँ के वडेरे हैं, ज़िम्मेदार हैं और उनके ऊपर FIR भी जो है वो अभी तक दर्ज नहीं की जा रही है। और मैं हुकूमत वक्त से ख़ास तौर पे इजाज़ आलम अगस्तियन साहब, हमेशा आप ही को कहा जाता है क्योंकि आप बात सुन भी लेते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए भी बड़ी दुआएं दिल से निकलती हैं। सिटी थाना शेखपुरा जो है फरुखाबाद, वहाँ पे ये लोग गए हैं, इनकी बात नहीं सुनी गई है। मज़ीद तफसीलात आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अफसोस है मुझे ऐसे सारे वाक़यात का जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी आप बेहतर समझते हैं, कभी फोर्स कन्वर्जन और पता नहीं क्या क्या मामला होते रहते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं तमाम देखने वाले दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और आई होप सो कि बहुत जल्द आपको इस वाक़े के बारे में, क्योंकि अभी वो बंदा बिल्कुल अनकॉन्शियस है, उसको बिल्कुल होश नहीं है, मैं उसको हलाता भी रहा हूँ, उसकी कोशिश की है उससे बात करने की, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उसको भी अपनी दुआ में याद रखिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इनके हवाले से जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद
not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications.